Good morning, 11th class. How are you all? Hope you all are good. So, class, today we are starting with our first chapter of the geography book, Fundamentals of Physical Geography. Okay. So, this is basically just, you can say, regarding talking about geography as a subject. Okay. That means we are talking about geography as a subject, and how is it important? First of all, why do we need to study it? Then if we study it, what are the different ways to study it? How are certain things really important? Okay, so this is basically what we are talking about in terms of geography. So as the name suggests, geography as a discipline, as a subject, that is what we will be understanding in nutshell. You can say a short introduction of geography and few important terms related to geography. That is what we will be doing in this part. Okay, so now let us start. Now class, till our 10th class, we have studied geography as part of social science, and we have not studied it as an individual subject. Okay. But now we will notice that this is our one complete subject, and we will be studying this subject in more detail. And now we should know that when we are talking about geography, how do we study it and what will we study in it? ज्योग्राफी इन इटसेल्फ आई हैव सेड कि ठीक है, एक सेपरेट सब्जेक्ट है, एक आपका डिसिप्लिन है ये इन योर 11th एंड 12th स्टैंडर्ड. ओके, एंड इफ यू चूज इट लेटर, बट इसका मतलब नहीं, ये नहीं है कि इट इज totally not related to the other subjects. It is kind of, you can say, having total interrelated subjects with many other parts of different subjects जिसके बारे में हम पढ़ेंगे. So basically we'll study geography as an independent subject. We will learn about physical environment of the earth, we will learn about the human activities, and we will also learn about the interactive relationship between geography and many other subjects. History हो, eco हो, political science हो, इसके अलावा meteorology हो, pedology हो, many other things. It is not related to one particular thing. Even many sciences are also connected to it. Okay. Now the next question that we will witness is, why should we study geography? Again, one very important question. Why do we study geography? The most important thing, obviously, we all live on the surface of the earth. It is, and our lives are in every way affected by the surroundings. We have lot of examples, needless to say. How does our environment, how does our physical environment actually affect our life? So obviously, because we live on the surface of the earth, our lives are affected by it. So obviously we should know more about it. And then along with that, हम ये भी देखते हैं कि we basically depend on many resources for sustenance of our life. तो हमें भी surrounding areas के बारे में information होनी चाहिए. So obviously we actually depend for each and everything on our surrounding areas, on our physical environment. That is why we should have total knowledge of geography. So this is about that, why geography is important. Why should we study it? We live on its surface. Our lives are affected by the physical environment, by geography and its various aspects. And geography also tells us about the resources which we need to sustain our life. Now, along with this, let us now understand few other important things regarding geography before moving on to the proper definition. Now, as I said, when we were talking about the resources, we know कि resources are really essential for us. Okay. So now, जब हम अगर primitive societies की बात करें, यानी जैसे early men जब थे, early men के बाद फिर भी थोड़ा बहुत develop हुआ, agriculture suppose develop हुआ, तो किस पे depend करते थे? Natural means of subsistence, edible plants, animals. Initially, early men तो सिर्फ hunter gatherers होते थे, totally depending on nature and our geography.
देन इसके बाद अगर हम देखें पैसेज ऑफ टाइम, धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलपमेंट आई, टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, हमने फूड ऑब्टेन करना सीखा by agriculture, by using things, by using resources like land, soil and water properly. हमने फिर अपने फूड हैबिट्स एडजस्ट किए, क्लोथिंग एडजस्ट किए अकॉर्डिंग टू प्रिवेलिंग वेदर कंडीशंस. What do I mean by this? I simply mean that you must have noticed or you must have studied earlier कि आज तो हम ठीक है, जैसे वी आर लिविंग इन सपोज वेरी हॉट एरिया where the climate is very hot, we do adjust, we have ACs, we have other facilities, है ना. बट अर्लियर क्या होता था, स्पेशली अर्ली मैन के टाइम पे, अगर उनको लगता था कि जो एरिया है वहां पे इस तरीके से हम नहीं रह पाएंगे प्रॉपरली, या क्लाइमेटिक कंडीशन सपोज एक्स्ट्रा हेवी रेनफॉल है या ऐसा कुछ है, दे जस्ट यूज टू माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू दी अदर. बट नाउ वी हैव एडजस्टेड, we know how to change environment, matlab how to adjust in that situation. We have proper houses, we are not scared of those kind of rains or the kind of, agar bahut zyada hot weather condition hai, cold weather ke liye apne पास उस हिसाब के अपने कपड़े हैं, हीटर्स हैं, हमने अपने फूड हैबिट्स उस हिसाब से चेंज किए हैं. तो ऑब्वियसली वेरिएशंस हुए हैं नेचुरल रिसोर्सेज में भी, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में भी, और हमने किस तरीके से अडेप्ट किया है, एंड हमने किस तरीके से फिजिकल एनवायरनमेंट को चेंज किया है. ओके और हम कैसे ज्योग्राफी के बेसिस पे ही हम देखेंगे सोशल ऑर्गेनाइजेशन, कल्चरल डेवलपमेंट, ये सारी चीजें रिलेटेड है. ठीक है, तो हमें पता है कि चीजें जो है वो वेरी करती है ज्योग्राफिकल स्पेस और टाइम के बीच में. अगर हम इंडिया की बात करें, वी लिव इन अ कंट्री विच इज फुल ऑफ डाइवर्सिटी, whether we talk about land, whether we talk about people. Okay, so that clearly means कि हम जैसे जैसे दूर जाते हैं, जैसे जैसे हम एक्सपैंड करते हैं या एक एरिया से दूसरी एरिया की तरफ जाते हैं, बहुत चेंजेस होते हैं. नॉट ओनली स्पेस, ओवर टाइम ऑल्सो. ज्योग्राफी हमें केपेबल बनाती है टू appreciate diversity, to understand them, and most important, investigate into the causes responsible for creating such variations. That means, please understand, we will not study geography just as few facts. From now, we will not say ki this area is maybe this is mountainous area, or maybe this area is having this particular kind of soil. Yeah, we will not study that people generally want to live at this particular place. ठीक है कि इस एरिया डेंसली पॉपुलेटेड होती है, हम ये भी पढ़ेंगे वाई, और इस वाई का आंसर अपने को कौन दिलवाता है, ज्योग्राफी. So geography is not only about, you can say, certain facts, but we investigate to the causes. We also see the later effects. Okay, to understand everything that is happening. We know now global warming is happening. We will not study in geography only that global warming is being witnessed all around, the glaciers are melting. No, we will know the reasons behind it, ऐसा क्यों हो रहा है और क्या इफेक्ट हो सकते हैं इसके. Okay, that is what geography will tell us. It helps us to develop skills to understand globe, which is converted into map and have a visual sense of Earth's surface. Now by now we know Earth is actually in the shape of geoid, where we know it is flattened at the poles and bulging towards the center. Okay, so just imagine एक 3D figure को 2D में मैप के फॉर्म में बनाना, फ्लैट में बनाना on a sheet of paper is really difficult, but geography tells us how to do it. Okay, modern science and technique has actually developed so much that it also tells us lot of other information as well. ठीक है, तो अदर इंफॉर्मेशन में अगर हम बात करें, कार्टोग्राफी, व्हाट इज कार्टोग्राफी? कार्टोग्राफी इज बेसिकली आर्ट ऑफ मेकिंग मैप्स. ओके, देन इसके साथ you all must be having idea about the GPS. Then we have GIS. GIS is Geographic Information System.
and we have lot more other remote sensing and lot more other things which helps us to understand geography better. Okay, so now we have understood that why should we study geography, why it is important, and uh, how it is somewhere very very important to connect it with the other things, and we'll see basically not only the facts but the causes and the effects as well in geography. तो अब हम आ जाते हैं on our next question. So our next question is that what is geography? Okay, it is basically, ऐसे हम definition तो proper करेंगे, but you know that earth is our home and we have many creatures big and small, all of them live together. Earth's surface is not uniform, there are so many variation. Physical features में देखो, mountains में देखो, hills में देखो, valleys में देखो, plains, plateaus, so many variation. Then so many social and cultural features also. We have cities, roads, railways, ports, markets, so many different, you can say, things. An entire period of development. Development किसी भी sense में हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी में हो, कल्चर में हो, सोसाइटी में हो, इकोनॉमी में हो, जिस भी चीज में हो, समवेयर इतनी ज्यादा अपने पास एलिमेंट्स है, तो इनको समवेयर हम पढ़ते हैं जब स्पेसिफिकली, तो स्पेसिफिकली पढ़ने के साथ साथ ज्योग्राफी से भी ये रिलेटेड है. ठीक है, तो बेसिकली ये जो वेरिएशन है, चीजों में जो चेंजेस आ रहे हैं, ये अपने को हेल्प करते हैं टू अंडरस्टैंड the relationship between the physical environment and the social and cultural features. ठीक है, see we'll study geography in two parts, physical geography and human geography. Physical geography we'll study in 11th and human geography we'll study in 12th, but it is not that both of them are totally separated, they are interlinked, but basically in physical geography we'll study more about the changes in the earth, the other things that are happening, everything from its evolution to its present form. Whereas human geography में ऐसी चीजें जैसे population, migration, ये सब चीजें पढ़ेंगे, but all of them are totally related to each other. तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं जो physical environment है वो हमें totally help करती है in understanding the relation between social and cultural features. हमारे बहुत सारी चीजें जो है हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट के ऊपर बेस्ड होती है. वी ऑल्सो डिस्कस्ड वंस दैट जो इंडिया में अगर हम देखें तो रेन के बेसिस पे बहुत सारे फेस्टिवल्स जो हैं वो उस हिसाब से लोगों ने फिक्स कर रखे हैं बिकॉज ऑफ द कमिंग ऑफ द रेन. तो हम फिजिकल एनवायरनमेंट को कैसे अपने सोसाइटी और कल्चर में को कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं कि दोनों को आपस में लिंक कर दिया है, और है भी लिंक. तो फिजिकल एनवायरनमेंट जो है इट बेसिकली प्रोवाइडेड द स्टेज on which human societies enacted the drama of their creative skills with the tools and techniques which were invented and evolved in process of their cultural development. Simple terms में क्या है, फिजिकल एनवायरनमेंट ने वो स्टेज प्रोवाइड किया जिस पे ह्यूमन बींग्स ने यहाँ पे स्टेज और ड्रामा यूज कर लिया, मतलब एक रिसोर्स प्रोवाइड किया जिसको ह्यूमन बींग्स ने यूज किया. कैसे यूज किया, अपने टूल्स और टेक्निक से, अलग अलग प्रोसेसेस जो उन्होंने इन्वेंट किए थे उनसे. ओके, सो दिस इज रिगार्डिंग, यू कैन से, व्हेन वी टॉक अबाउट how physical environment has helped human societies to develop and how both of them are somewhere related to each other. ठीक है, so now our bigger question, what is geography and how do we actually define it? सिंपल वर्ड्स में हमें पता है इट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ. ओके, इट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ. बट ये जो टर्म ज्योग्राफी है इट वाज फर्स्ट गिवन बाय इरेस्थोनिस. ठीक है, ये ग्रीक स्कॉलर है. ओके, इरेस्थोनिस. तो अगेन रिमेम्बर ग्रीक स्कॉलर. ओके, तो इन्होंने बोला कि ये वर्ड जो है बेसिकली दिस हैज डिराइव्ड फ्रॉम टू रूट ग्रीक वर्ड्स and Greek language. Geo means earth and graphos means description, यानी description of the earth. Simple terms में है ये. So this is what was being suggested.
Then coming to the next point, but we know that this alone cannot actually totally describe everything related to geography, but simple terms, this is the definition. The earth has always been seen as the abode of human beings, यानी human beings के रहने की जगह, इसलिए scholars इसको ऐसे भी describe करते हैं, description of the earth as the abode of human beings. ठीक है. Now you are aware of the fact that reality is always multifaceted and the earth is also multidimensional. यानी हम सिर्फ एक एस्पेक्ट के फॉर्म में अर्थ को नहीं पढ़ सकते हैं, तो बहुत सारे और डिसिप्लिन्स हैं जो इससे रिलेटेड है नेचुरल साइंसेस से, जैसे कि जियोलॉजी, पेडोलॉजी रिलेटेड टू सॉइल, ओशनोग्राफी, बॉटनी, बॉटनी हमें पता है वेजिटेशन से रिलेटेड होती है, जूलॉजी एनिमल से रिलेटेड, मीटियोलॉजी, ठीक है, इन सब से रिलेटेड है ज्योग्राफी। और सबसे जो इससे रिलेटेड सबसे ज्यादा जो कनेक्टेड सब्जेक्ट्स हैं उनको हम सिस्टर डिसिप्लिन्स बोलते हैं। तो सिस्टर डिसिप्लिन्स जो है ज्योग्राफी में, सोशल साइंसेस में अगर देखें तो सिस्टर डिसिप्लिन्स ज्योग्राफी के हैं इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी मतलब ह्यूमन बींग्स के चेंज एवोल्यूशन से रिलेटेड स्टडी। ये सारे जो है ये स्टडी डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अर्थ सरफेस एंड ऑल ऑफ देम आर रिलेटेड टू ज्योग्राफी। तो हम बोल सकते हैं ज्योग्राफी इज डिफरेंट, okay, geography is different from other sciences in its subject matter and methodology, but at the same time it is closely related to other disciplines. ठीक है, ऐसे डिफरेंट सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मैटर अलग है, मेथड उसको करने का अलग है, बट रिलेटेड वो बाकी सारे डिसिप्लिन से भी बहुत ज्यादा है। जैसे ज्योग्राफी जो है इट डिराइव्स इट्स डाटा फ्रॉम नेचुरल एंड सोशल साइंसेस एंड अटेम्प्ट्स देयर सिंथेसिस। हमने ज्योग्राफी जितनी भी पढ़ी है 10th क्लास में, 9th क्लास में, हमने कितना डेटा पढ़ा है, और वो सारा डेटा अपने को अगर हम सेक्टर से रिलेटेड बात करते हैं तो वो अपने को इको से मिल जाएगा, और जो डेटा एनालिसिस करते हैं वो मैथ से रिलेटेड आ जाएगा। सो वॉट एवर इट इज जस्ट सिंपल एग्जाम्पल। बाकी हमने जितने भी डिटेल्स पढ़े हैं ज्योग्राफी में, ऑल यू विल नोटिस हमेशा कोई ना कोई साइंस के आपस में कनेक्टेड ही है। सो वी कैन नॉट सेपरेट एज सच ज्योग्राफी विद द अदर डिसिप्लिन्स, ठीक है। सो नाउ जब अपने को इतना कुछ पता चल गया है अबाउट ज्योग्राफी, लेट अस नाउ अंडरस्टैंड फ्यू मोर एस्पेक्ट्स ऑफ इट, ठीक है। नाउ वी हैव नोटेड कि बहुत वेरिएशन है ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, चाहे हम फिजिकल एनवायरनमेंट की बात करें, चाहे हम कल्चरल एनवायरनमेंट की बात करें। सो अ नंबर ऑफ फिनोमिना सिमिलर भी होते हैं पर बहुत डिसिमिलर भी होते हैं, यानी बहुत सारे जो हैं वो डिफरेंट भी होते हैं और बहुत सारे क्या होते हैं, सिमिलर भी होते हैं। क्या चीज? जो हमारे फिजिकल और कल्चरल एनवायरनमेंट है। इसीलिए देयरफॉर बहुत लॉजिकल हो जाता है कि हम ज्योग्राफी को एज क्या पढ़े, एज एरियल डिफरेंशिएशन पढ़े, ठीक है। एरियल का यहाँ पे क्या मतलब है क्लास? एरिया के वाइज, ठीक है, मतलब एक्सपेंस जो है रीजन ऑफ लैंड उसके हिसाब से, ठीक है। सो इसको डू नॉट कंफ्यूज इट विथ एरियल, AERIAL, वो तो होता है बेसिकली एयर से, जैसे एरियल व्यू एयर से रिलेटेड ऊपर से। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एरियल, AREAL, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन ऑन द फर्स्ट लाइन। तो एरियल का मतलब क्या होता है? बेसिकली रिलेटेड टू एरिया। So do not get confused regarding this. So we were saying कि इसीलिए एरियल डिफरेंशिएशन की स्टडी सही होती है एरिया वाइज। अगर हम चीजों को समझे, भाई यहाँ का क्लाइमेट ऐसा है, यहाँ का फिजिकल एनवायरनमेंट ऐसा है, यहाँ का कल्चरल एनवायरनमेंट ऐसा है, तो वो रिलेटेड है या नहीं है, ठीक है। इसीलिए ज्योग्राफी वाज बेसिकली परस्यूड टू स्टडी, you will notice that geography is somewhere we will now focus at all those phenomena which vary over space, ठीक है। So that means that in geography we will notice that हम space के वाइज क्या करते हैं, phenomena को पढ़ते हैं, ठीक है।
बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ वेरिएशंस जो है उसी को क्या कर रहे हैं, वेरिएशंस को ही स्टडी कर रहे हैं इन द फिनोमिना ओवर द अर्थ सरफेस. No, we also study it with somehow associating it with other factors which cause these variations. यानी ठीक है, हमने वेरिएशंस तो पढ़ ली कि यहाँ से रिलेटेड ये वेरिएशन है, वहां से रिलेटेड वो वेरिएशंस है, बट इसके अलावा अपने को ये चीज भी समझनी है कि व्हाट विल हैपन इफ दिस हैपेंस. मतलब वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉजेज एज वेल. ओके, और मतलब वो वेरिएशन क्यों हुए हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल दे आर जस्ट गिविंग अस वन एग्जाम्पल वेयर वी विल सी कि जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो अलग क्यों है हर अलग जगह पे. ऑब्वियसली सॉइल, हमें पता है हर अलग क्रॉप को अलग सॉइल चाहिए होती है, अलग टाइप का क्लाइमेट चाहिए होता है, और ये भी है कि उधर के मार्केट में किस चीज की डिमांड है. इससे भी फर्क पड़ेगा कि उस एरिया के फार्मर्स की इन्वेस्टमेंट करने की कितनी कैपेसिटी है, क्या वो टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व कर रहे हैं या ओल्ड वेज ही यूज कर रहे हैं. सो दैट मीन्स आई विल नॉट सिंपली से कि यहाँ पे व्हीट ग्रो होती है, यहाँ पे राइस ग्रो होती है. आई विल टेल द रीजंस कि वहां पे क्लाइमेट ऐसा है कि राइस अच्छे से ग्रो हो सकती है, राइस की डिमांड है, वहां पे व्हीट अच्छे से ग्रो हो सकता है. ठीक है, वहां के जो फार्मर्स है वो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, वहां के नहीं करते हैं. सो उसके रीजंस, दैट इज उसके भी जो रीजन है उसके भी रीजन कि व्हाई इज इट सो, वो हम डिस्कस करते हैं. So basically, the concern of geography is to find out the causal relationship between any two phenomena, okay, or between more than one phenomena. यानी जरूरी नहीं है कि एक ही या दो ही चीजों के, दो या उससे ज्यादा भी समवेयर हम बोल सकते हैं कितना रिलेशनशिप है बिटवीन द डिफरेंट फिनोमिना. अलग अलग जो अलग फिनोमिना है उससे रिलेटेड कैसे चीजें लिंक्ड है, कैसे चेंज होती है, क्या कॉज एंड इफेक्ट. रिमेंबर दिस, कॉज एंड इफेक्ट. क्या कॉज है उसका क्या इफेक्ट होगा. ठीक है, तो दैट इज हम बोलेंगे कि इट नॉट ओनली इंटरप्रेट्स और इट नॉट ओनली helps us to understand the aspects of any area but also tells us कि अगर ऐसा होता रहा तो फ्यूचर में क्या होगा. We have lot of, you can say, research work that is going on regarding resources कि हम नहीं करेंगे तो resources finish हो जाएंगे, या इसी हिसाब से चलता रहा तो वार्मिंग कंडीशन ऐसी हो जाएगी, क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी होगी, फ्यूचर में ये होगा. How can we predict this? We are not predicting it like any kind of having special knowledge related to एस्ट्रोलॉजी, बट जोग्राफर जो है वो किस हिसाब से अकॉर्डिंग टू द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो अभी इम्पैक्ट हो रहा है और आगे क्या जाके होगा, दैट. ओके, सो दिस इज आई सपोज वी अंडरस्टैंड क्लियरली कि एक तो एरियल डिफरेंशिएशन वाली डेफिनेशन हो गई, दूसरी है अपनी कॉज एंड इफेक्ट. ठीक है, जस्ट रिमेम्बर दीज. एक तो प्रॉपर डेफिनेशन है ही, इसके अलावा एरियल डिफरेंशिएशन के फॉर्म में कॉज एंड इफेक्ट. ज्योग्राफी स्टैटिक नहीं है, इट इज डायनामिक, हमें पता है, एवर चेंजिंग है, और इंटरैक्शन है बिटवीन नेवर रेस्टिंग मैन एंड एवर चेंजिंग अर्थ. दिस इज व्हाट वी विल डू नाउ. नाउ ज्योग्राफिकल फिनोमिना जो है, चाहे वो ह्यूमन हो चाहे वो फिजिकल एनवायरनमेंट, जो मैंने बोला वी स्टडी बोथ ऑफ देम इन 11-12. तो फिजिकल ज्योग्राफी हो या फिजिकल फिनोमिना हो या ह्यूमन ज्योग्राफी हो, स्टैटिक नहीं है, ये क्या है, हाईली डायनामिक. डायनामिक का क्या मतलब है, चेंजिंग, एवर चेंजिंग. दे आर नॉट स्टैटिक, दे आर एवर चेंजिंग. ठीक है, एंड व्हाई आर दे एवर चेंजिंग, बिकॉज कंटिन्यूअस एक तरीके का इंटरेक्शन चल रहा है बिटवीन अर्थ, जो कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है, और उसके साथ साथ जो ह्यूमन बींग्स है जो एवर एक्टिव है, मतलब समवेयर ऐसे लगता है अनटायरिंग है, वो कंटिन्यूअस कुछ ना कुछ करते रहते हैं एनवायरनमेंट के लिए ताकि वो उसका बेस्ट यूज कर सके. बट अर्थ यानी ये क्या है, डायनामिक प्रोसेस है, क्योंकि अर्थ भी हमें पता है कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है. अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर्स से चेंज होता आ रहा है और अभी भी चेंज हो रहा है विद लॉट ऑफ प्रोसेसेस दैट आर एग्जिस्टिंग. सिंपल टर्म्स में अगर हम इरोजन डेपोजिशन की बात कर ले
कॉम्प्लेक्स टर्म्स में अगर हम अर्थ के अंदर की चीजों की बात कर ले, जो टेक्टोनिक प्लेट्स है या मूवमेंट ऑफ अर्थ जो भी फॉर्मेशन है, वो चेंज भी अर्थ भी हो रहा है, और ह्यूमन बीइंग्स जो कि थक नहीं रहे हैं, दे आर ऑलवेज वांटिंग टू ब्रिंग मोर एंड मोर चेंजेस इन द वे दे कैन समवेयर अडॉप्ट विद द नेचर. सो इसीलिए हम बोलते हैं डायनामिक है. ठीक है, द नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू रिमेम्बर. देन उससे रिलेटेड क्या है, उससे आगे ये है कि हम बोल सकते हैं प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटीज जो हैं, दे वर टोटली डिपेंडेंट ऑन द नेचर. ठीक है, बिकॉज प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी को तब तक इतना ज्यादा अडॉप्ट करना नहीं आता था, इन द सेंस कि दे डिड नॉट हैड दोज मोड्स, या इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वो एनवायरनमेंट को अपने हिसाब से अडॉप्ट कर ले, उसी एनवायरनमेंट में वहां पे रह पाए, तो या अपने लिए ग्रो कर सके, फूड अवेलेबल, सारी चीजों के लिए वो टोटली किस पे डिपेंडेंट थे, अपने इमीडिएट एनवायरनमेंट पे. इसीलिए ज्योग्राफी जो है इट इज ऑल्सो कंसर्न विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड ह्यूमन इंटीग्रेशन एज एन इंटीग्रेटेड होल. ठीक है, यानी एक कंबाइंड है नेचर और ह्यूमन, एंड ह्यूमंस जो है दे आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ नेचर, एंड नेचर हैज द इम्प्रिंट्स ऑफ ह्यूमंस. व्हाट डू वी मीन बाय दिस? अगेन इन वेरी सिंपल टर्म्स, ह्यूमन बीइंग्स नेचर का, हम नेचर का ही तो पार्ट है, एंड नेचर जो है हैज टोटल इम्प्रिंट्स ऑफ ह्यूमन. ह्यूमन बीइंग्स ने इतना इम्पैक्ट किया है उस पे कि प्रॉपर हम देख सकते हैं कि नेचर में क्या क्या चेंजेस जो है वो ह्यूमन बीइंग्स लाए हैं. ठीक है, नेचर ने भी बहुत इन्फ्लुएंस किया है ह्यूमंस की लाइफ को, और ह्यूमंस ने भी बहुत इफेक्ट किया है नेचर को. ठीक है, अगर हम बात कर ले फूड की, क्लोथिंग की, शेल्टर की, ऑक्यूपेशन की, बेसिकली वी नो दैट नेचर डज इन्फ्लुएंस ह्यूमन लाइफ. हम उसी टाइप का खाना खाएंगे, हम उसी टाइप की क्लोथिंग करेंगे जहाँ पे हम रहते हैं, वहां का जैसा एनवायरनमेंट है, जो कंडीशंस है. सो ह्यूमन बीइंग्स हैव कम टू टर्म्स with nature through adaptation and modification, but अब slowly and gradually human beings जो हैं वो क्या हो गए हैं, they have basically adapted to the situation and they have introduced few modifications so that they can live life nicely. Now the present society has passed the stage of primitive societies which were directly dependent on their immediate physical environment for sustenance. Now दो चीजें याद रखो, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर. नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस में क्या था, टोटली मैन जो है वो नेचर पे डिपेंडेंट था, नेचुरल फोर्सेस डोमिनेट करती थी, ह्यूमन बीइंग्स नेचर के हिसाब से चलते थे, जो फूड अवेलेबल थे वो खाते थे, जो एनवायरनमेंट थी उसके हिसाब से खुद को अडेप्ट करते थे. ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं स्टेज ऑफ नेसेसिटी. क्या बोलेंगे? स्टेज ऑफ नेसेसिटी, जरूरत, जो ह्यूमन बीइंग्स की नीड है, जो ह्यूमन बीइंग्स को खाने के लिए, रहने के लिए चाहिए था, वो डायरेक्टली नेचर से प्रोवाइड होता था. ठीक है, ये प्रिमिटिव सोसाइटीज जो है वहां पे होता था. ठीक है, और इसमें हम बेसिकली डायरेक्टली डिपेंडेंट थे ऑन इमीडिएट फिजिकल एनवायरनमेंट फॉर लिविंग. ओके, तो ये हमारा क्या था, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस, यानी ह्यूमंस को नेचर के हिसाब से चलना पड़ता था. ठीक है, एंड दे बेसिकली डिपेंडेड ऑन नेचर, एंड दिस वाज द टाइम पीरियड जनरली ऑफ द अर्ली सोसाइटी. बट जो प्रेजेंट सोसाइटी पे आ जाते हैं, हमने मॉडिफाई कर दिया है नेचुरल एनवायरनमेंट को बाय इन्वेंटिंग टेक्नोलॉजी. हमने चीजों को यूटिलाइज ज्यादा किया है, रिसोर्सेज जो हमें नेचर ने प्रोवाइड की थी, और डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी की कर करके हमने बेसिकली जो हम पूरे के पूरे नेचर से बने हुए थे, अर्ली सोसाइटीज जो थी, उसको हमने जैसे लूजन दी शैकल, शैकल्स मतलब क्या होता है, जो जंजीर जैसी होती है, तो जो बांध रखा था हमें कि हम नेचर के हिसाब से चलेंगे, वो लूजन कर दिया हमने और फ्री हो गए हैं. टेक्नोलॉजी ने बहुत कुछ अपने लिए हेल्पफुल बनाया है. एनवायरनमेंट के हिसाब से हम टोटली डिपेंडेंट नहीं रहते. अब टेक्नोलॉजी हेल्प इन रिड्यूसिंग द हार्शनेस ऑफ लेबर. लेबर एफिशिएंसी बढ़ी है, इतना काम नहीं करना पड़ता है, लेजर बढ़ा है ह्यूमन बीइंग्स के लिए.
ठीक है, हम अपने हायर नीड्स ऑफ जो लाइफ है, सिर्फ नेसेसिटी नहीं, बाकी चीजें जो है उनको भी इंजॉय कर सकते हैं. So basically it also increased the scale of production and mobility of labor. तो यानी क्या है, प्रोडक्शन भी बढ़ा है, मोबिलिटी ऑफ लेबर भी बढ़ा है, और इसीलिए हम इस वाले जो फेज है इसको बोलते हैं स्टेज ऑफ फ्रीडम. और ये है हमारा ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर. यानी अब हम नेचर के हिसाब से नहीं चलते हैं, हम नेचर को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं. So specifically human use nature according to his needs and desires, and habitats and environments were modified for better lifestyle. And because we are not constrained, or we don't have to live only according to the natural conditions, that is why this stage is also called as the stage of freedom. So I suppose naturalization of human, जिस पे totally nature पे dependent थे, उसके हिसाब से रहते थे. ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर में हम डेवलप हो गए हैं, हमने एनवायरनमेंट के हिसाब से और सिचुएशन के हिसाब से मॉडिफाई कर देते हैं टेक्नोलॉजी और चीजों के साथ. सो वी आर बेसिकली द फेज इज ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर. ठीक है, तो ये नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर जो है, दीज आर बेसिकली शोइंग अस द रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड नेचर. सो आई सपोज दिस इज क्लियर टू यू पीपल कि व्हाट इज नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, और कैसे टोटली सारी चीजें रिलेटेड है. ठीक है, तो आई सपोज आज जितना हमने किया है, दिस मस्ट बी क्लियर टू यू. नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, so just give this portion a reading. If you have any doubt relating to whatever we have covered, just come back with your problems and we'll solve and discuss it. Okay, so this is it for class. Now we all will meet in the next class. Bye class.